Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 5 which named 3rd edition New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of unit number 2, The World in Evolve, page number 13. Exercise first of all है comprehension में कई टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और नोट बना चुकी हूँ. नेक्स्ट पेज पे है वर्किंग विद वर्ड्स, ये भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी. उससे नेक्स्ट पेज पे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, इसमें ग्रामर है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी भी. इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हैं, ये भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी. यानी 16 पेज पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग है और ई में है कंपोजिशन भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ. इट्स मीन्स के एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन सॉल्व है. आपको इस वीडियो में तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ, यानी इन क्वेश्चंस को आपने समझ कर पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज जेरल्ड हंट फॉर एनिमल्स एंड व्हाई इज इट अ गुड प्लेस टू फाइंड देम. आंसर लिखें इसका. जेरल्ड हंट फॉर एनिमल्स इन एन ancient wall. It is a good place to find them because many creatures live in the cracks of wall. Make 2 lists of animals under the following heading. आंसर लिखें इसका. Animals that Gerald finds during the day: caterpillar, spider, dragonflies, flies and hunting wasp. Next point लिखें. Animals that Gerald finds at night: toad, jackals, crane flies, moths and flies. Jackals lizard की एक टाइप है. सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हु द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर एंड फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन्स टू देम इन द नेक्स्ट. लैरी, रॉजर. लैरी का लिखें. जेरल्ड्स एल्डर ब्रदर, ही टॉक्स एंड स्मोक्स a lot. He developed a phobia of match boxes after the incident. रॉजर के बारे में लिखें. A pet dog, Gerald likes and feeds him at meal time. He barks wildly when something bad happens. Gerald takes him on a walk. He is a companion of Gerald. D question है, what does Gerald think the female scorpion is wearing? What gives her that appearance? आंसर लिखें इसका. Gerald thinks the female scorpion is wearing pale brown fur coat. All her babies are clinging to her back, which gives her that appearance. Next question E है, what does Gerald forget about the scorpions after he has put them in the matchbox? Gerald forgets about the scorpions because the lunch distracted him. What happens to Gerald's mother during the chaos at the end of lunch? आंसर है इसका. During the chaos at the end of lunch, mother gets wet with water which Margot tries to throw on scorpions but misses. G questions. What does Gerald stay away from the family in the afternoon? Gerald stay away from the family in the afternoon because he thinks it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. Next question. H question है, what are the repercussions of the incident? आंसर लिखें इसका. Mother decided to try to stop me from exploring the animals world. She said, I am getting you a tutor. Larry develops a phobia of matchboxes. Next question है, why do you think the chapter is called The World in a Wall? This is called The World in a Wall because Gerald describes about the creature lives in the cracking wall. I question है, why do you think that this chapter is called The World in a Wall? आंसर लिखें इसका. This is called The World in a Wall because Gerald describes about the creatures which lives in the cracking wall. J question है, work with others to fill in the Venn diagram below with the names of the creatures mentioned in the story. यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है. इस डायग्राम को वेन डायग्राम बोला जाता है. प्रे यानी शिकार, प्रेडेटर का मतलब है शिकारी. इनमें नाम लिखने हैं. क्रेन फ्लाइज, मोर, बीटल फ्लाइज. और इसमें लिखना है स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाइज. प्रेडेटर में लिखना है टोड्स, लिजर्ड, जैकॉस. यहाँ पे चैलेंज है, पिक आउट द 3 of Gerald's descriptive phrases about scorpions. How does he feel about scorpions? आंसर लिखें. An inch long made out of polished
chocolate, and flattened oval bodies, three of the descriptive phrases used about scorpions. Next page पे आ जाए. Question number 2 है answer the following questions with reference to context. ये हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिससे रिलेटेड ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं. पढ़ लेते हैं सेंटेंस को. I completely forgot about my exciting new captures. क्वेश्चन नंबर ए है who forget and what distracted him. आंसर लिखें इसका. ए का Gerald forget and the lunch distracted him. Why did he capture the creatures? आंसर लिखें इसका. He captured the creatures because he wanted to see them how they grow up. सी क्वेश्चन है वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स. सी का आंसर है द कैप्चर्ड क्रिएचर्स वर इनसाइड द मैच बॉक्स. MATCH मैच BOX बॉक्स. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स नेक्स्ट आफ्टर लंच लेडी ओपन्स द मैच बॉक्स एंड द स्कॉर्पियंस केम आउट. B है working with words. Use the following word in sentences of your own to show that you understand what they means. You will fill the words in the story. यहाँ हमें कुछ words दिए गए हैं, हमने इसके sentence बनाने हैं, लेकिन ऐसे sentence बनाने हैं जिनमें इन words की meaning वाज़ेह हो सके. इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी. Word sentences में first word है bulging. The backpack was bulging with all the book and supplies. Reluctantly, the child reluctantly ate the vegetables on his plate. Enraptured, the audience was enraptured by the singer's performance. Surreptitiously, the thief surreptitiously entered the house to steal the valuable items. Oblivious, she was so lost in her thoughts that she was oblivious to her surrounding. Inhabitants, the inhabitants of the small village were friendly and welcoming to outsiders. Dawdling, I was late for my meeting because I spent too much time dawdling on my phone. Confetti, the party guests danced and laughed, kicking up confetti that covered the floor like a shimmering blanket. Confetti किसे कहते हैं? A small piece of color paper. Next question है types of noun. Noun की किस्में. Here are some common collective noun. यहाँ पर हमें कुछ collective noun दिए गए हैं. Can you match them correctly and write them in your notebook? इनको correctly match करना है common collective noun की. जैसे first है range. आपने यहाँ पे इसकी matching करनी है. एक example भी दी गई है. A swarm of bees. इसी तरह इन वर्ड्स की भी हमने मैचिंग करनी है. फर्स्ट है रेंज. इस बी बॉक्स में कौन सा वर्ड इसके साथ मैच कर रहा है? हिल्स. रेंज के साथ हिल्स जो है वो मैच कर रहा है. तो आपने लिखना कैसे है? अ रेंज ऑफ हिल्स. सेकंड है कॉलोनी. कॉलोनी के साथ मैचिंग वर्ड है आर्ट्स. लिखना कैसे है? आ कॉलोनी ऑफ ants. Heap, a heap of stones. Flock, a flock of cows. Herd, a herd of sheep. A pack of horns. A litter of puppies. A school of fish. A deck of cards. A bunch of keys. A pack of wolves. Put the following nouns under the correct heading. कॉमन और प्रॉपर नाउन. पहले ये समझना है हमने कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं. किसी आम चीज़ जगह के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसी भी ख़ास चीज़ जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है. और यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिनमें हमने बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है. जैसे कि ये रेवर है. रेवर तो कई सारे हैं, ये कोई ख़ास नाम नहीं लिखा हुआ इसके साथ, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. इंडस, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक ख़ास नाम है, एक ख़ास रिवर का नाम है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ख़ास नाम नहीं लिया गया, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन है. जैफ प्रॉपर नाउन है. प्लेसेस कॉमन नाउन. पाकिस्तान प्रॉपर नाउन. माउंटेन क्या है? ये भी कॉमन नाउन है. K2B प्रॉपर नाउन है. अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कि हम इंग्लिश में हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं. हाउ मेनी जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन वर्ड्स उन सेंटेंस में हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें काउंटेबल नहीं होती उसके लिए हम
हाउ मच का यूज़ करते हैं। यानी जिस तरह हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, तो इसी तरह यहाँ हमने नाउन का बताना है कि कौन से नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है और कौन से नाउन जो है वो काउंटेबल है। रेन, इनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। स्नो को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर की भी यही मिसाल है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सैंड, सैंड के में भी बहुत हज़ारों क्या होते हैं, ज़रे होते हैं, इस वजह से ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। स्टोन्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। टीथ काउंटेबल नाउन है। फर अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। पेन्स गिन सकते हैं हम इसको, तो ये क्या है, काउंटेबल है। जैकेट्स, इसको भी हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। ये ग्रामर है। यहाँ पे ग्रामर में हमें आज सिखाया जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बोल चाल के हिस्से। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बोल चाल के यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। नाम क्या क्या है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस एंड इंटरजेक्शन। आपने इन नेम को अच्छी तरह याद करना है और इन नेम्स के, इन पार्ट ऑफ स्पीच की मैं डेफिनेशन भी लिख चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी। सबसे पहले है नाउन। तो नाउन है अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है, वो वर्ड जो कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, डॉग, स्कूल, हैप्पीनेस और पाकिस्तान। और भी बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, चंद एक मैंने लिख दी हैं। प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह जो यूज हो, वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल क्या है, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। वर्ब क्या, किसी भी वो वर्ड जो एक्शन को, अकरेंस को और स्टेट को डिस्क्राइब करे उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रन, स्विम, एग्जिस्ट, गो, कम। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, वर्ब की एग्जाम्पल है। एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल ब्लू, हैप्पी, टॉल। प्रपोजिशन किसे कहते हैं, द वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल इसकी भी है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, इन, ऑन, एट। अब आगे हमें क्वेश्चन में कहा गया है राइट डाउन सेंटेंसेज यू सी एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें आपने पार्ट ऑफ स्पीच को लेबल करना है। आई एम गोइंग टू स्टोर टू बाय सम मिल्क, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टू है। टू क्या है, प्रपोजिशन है। आगे एज यू वर्क थ्रू द नेक्स्ट 5 यूनिट इन दिस बुक्स। इस बुक में आगे मज़ीद जो यूनिट 5 यूनिट दिए गए हैं, कॉपी 1 सेंटेंसेस इनटू योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस लेबलिंग द पार्ट ऑफ स्पीच इन इट। आगे 5 यूनिट में से आपने इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेक लिस्ट ऑफ नाउन, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। हमें ये एक पैसेज दिया गया है जिसमें हमने बताना है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। जो नाउन है उसके ऊपर मैंने एन लिखा हुआ है, जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर मैंने ए लिखा हुआ है और जो प्रोनाउन है उसके ऊपर मैंने पी एन लिखा हुआ है। वन डे मेरलिन एंड विज़र्ड केम आउट। इसमें वन डे, डे जो है वो नाउन है, मेरलिन भी नाउन है, विज़र्ड भी नाउन है। केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन, डीप क्या है, एडजेक्टिव है, ग्रीन भी एडजेक्टिव है। वेलीज, ये नाउन है, वेली क्या है, वेलीज नाउन है। वेल्स नाउन है। स्टोन वे, ये भी नाउन है। लंदन नाउन है। ही प्रोनाउन है। मैन क्या है, नाउन है। फेमस एडजेक्टिव है। नो वन प्रोनाउन है। हिम प्रोनाउन है। वे नाउन है। लंदन भी नाउन है। ही प्रोनाउन है। बिशप क्या है, नाउन है। दे प्रोनाउन है। ग्रेट एडजेक्टिव है। एबी चर्च क्या है, नाउन है। एवरीवन प्रोनाउंस है। चर्च नाउन है। अपीयर्ड एडजेक्टिव है। चर्च नाउन है। ग्रेट एडजेक्टिव है। स्टोन नाउन है। स्टोन नाउन है। इनवल, इनवल ये भी यहाँ भी 2 दफ़ा इनवल नेम दिया गया है, ये दोनों क्या है, नाउन है। शाइनिंग एडजेक्टिव है। स्वॉर्ड ये नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। फाइंड 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स इन द स्टोरी। वर्ब्स और
एडवर्ब्स हमने पढ़ लिया है। अब मज़ीद हमने 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स को ढूंढना है और एडवर्ब्स को ढूंढना है। चेंज वन ऑफ द एडवर्ब्स इनटू एन एडजेक्टिव। जैसे यहाँ हमें मिसाल दी गई है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल। यहाँ मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, bewilder, feared, hurled, drenched, भीग गया, इसका मतलब क्या है? भीगना। restore, round, एडवर्ब लिखें। promptly, eventually, reluctantly, interestedly, desperately, मायूसी की हालत में, increasingly। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन। इंटरजेक्शन को उर्दू में हुरूफ फिजाइया कहा जाता है और प्रेपोजिशंस को हुरूफ जार कहा जाता है। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स, इंटरजेक्शंस वो वर्ड होते हैं विच शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो दिखाता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशन जज्बात को, सच एज हैप्पीनेस जैसे कि खुशी, सैडनेस, गमी, या फिर कोई जब हैरत होती है वगैरह। इंटरजेक्शन यानी कि हुरूफ फिजाइया वो अल्फाज, वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी खुशी के मौके पर, किसी गमी के मौके पर, जब हमें कोई हैरत होती है या हम जब डर जाते हैं, हमारे मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज होते हैं, गैर इरादी तौर पर जो हमारे मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। उर्दू में हुरूफ फिजाइया कहते हैं। और प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन आर टू शो टाइम, पोजीशन, मूवमेंट और डायरेक्शन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग। इंटरजेक्शंस को हमने अंडरलाइन करना है, जैसे कि ये वर्ड है फ्यू, दैट वाज अ गुड रन, इसमें फ्यू। नेक्स्ट सेंटेंस में वी हैव लॉस्ट द बैटल, इंटरजेक्शन वर्ड कौन सा यूज हुआ है? अलास, इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, तो इंटरजेक्शन इसमें क्या है? हुर्रा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 16 पे। यूज द फॉलोइंग preposition इन sentences ऑफ your own। यहाँ पे हमें कुछ preposition दिए गए हैं जिनको हमने अपने sentences में यूज़ करना है। इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी। across का sentence बनाएं। I walked across the street to get to the store above. The bird flew above the tree. Under, the cat hid under the bed. Through, we walked through the park on a sunny day. Outside, the dog barked at the squirrel outside the window. Near, there is a coffee shop near my apartment. During the summer, I like to go swimming at the beach. Next question है D, listening and speaking। सुनना और बोलना। Work in a pair and take turns to ask each other some of the following questions. Answer each other in detail. Listen to your classmates' answers carefully. You can help your classmate give detail by asking them above their response। ये वैसे तो क्लास एक्टिविटी है, आप लोगों ने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन अगर आपको कोई इन क्वेश्चन में मुश्किल पेश आ रही है तो इनके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एनिमल्स यू आर मोस्ट लाइक एंड वाई। अपनी भी पसंद का कोई भी एनिमल का नेम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है आई एम मोस्ट लाइक अ डॉल्फिन बिकॉज दे आर मोस्ट प्लेफुल एंड सोशल एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर यू फ्राइटेंड ऑफ। तो मैंने इसका आंसर लिखा है आई एम फ्राइटेंड of a dog. I fear it can bite. Next question है C. What should we do to save endangered species? There are many things we can do to save endangered species, such as conservation organizations and spread awareness about the importance of protecting endangered species. D question है Are there any animals that we should try to kill? Why or why not? Answer लिखे इसका Yes. In certain cases, killing animals may be necessary for self-defense, human safety, or managing ecological imbalances. E question है which 3 animal traits would you most like to have and why? Answer लिखें इसका I would like to be a harmless as a sheep. I would like to be as beneficial as a horse. I would like to be productive as a hen. F question है what is the sweetest animals you can think of? I can think about cat as the sweetest animal. Except for food, do humans need other animals? Why or why not? They may need other animals to do research on them, to have an understanding of their existence in this world.
एच और लास्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न वाई पीपल हैव पेट्स, कंपेनियनशिप, स्ट्रेस रिडक्शन, सोशल इंटरेक्शन, अनकंडीशनल लव। लास्ट क्वेश्चन है ई कंपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन। इमेजिन दैट यू वर प्रेजेंट इन द डाइनिंग रूम ड्यूरिंग द स्कॉर्पियन incident. Write a paragraph about what you thought and felt about the incident. Think about how you felt during the incident, how you felt about Gerald's interest in animals, what should happen to Gerald. 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक को आपने सॉल्व करना है। मैं पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व कर चुकी हूँ, इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। During the scorpion incident in the dining room, I felt shocked, fearful and concerned. Gerald's interest in the scorpion intrigued me, but I also felt uneasy about his unwavering focus on it. My main priority was the safety of everyone present, and I remained alert, scanning the room for possible solutions. The incident served as a reminder to be prepared for unexpected challenges and approach curiosity with caution in potentially dangerous situation. The World in a Wall के तमाम तर क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इसकी फुल एक्सरसाइज विद समरी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।